Hey guys, welcome to my channel Sobha's Classes. Guys, today we'll discuss the approach to solve the questions, right? Approach to solve the organic question. Because इस वीडियो में हम बहुत ज़्यादा थ्योरी के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि थ्योरी तो हम सबको ही पढ़ते हैं, लेकिन आफ्टर रीडिंग सो मच ऑफ थ्योरी फिर भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम लैक करते हैं अप्रोच में। ठीक है, हमारी अप्रोच ठीक सही होगा, अगर कोई क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे अप्रोच सही होगा तो वी कैन ईजिली सॉल्व दैट क्वेश्चन। सो बेसिकली my aim is so we should learn together how to solve a question, right? We should basically aims at how to learn the approach to solve the questions. Okay, so basically today I am going to start a chapter from general organic chemistry, right? That is donor ability. Okay, so we are going to start donor ability. Okay, so this is your donor ability, right? डोनर एबिलिटी में हम देखते हैं हु विल डोनेट द स्पेसिस हैविंग इट्स इलेक्ट्रॉन। ओके, द स्पेसिस दैट आर इलेक्ट्रॉन रिच। ओके, अब बोले तो द स्पेसिस दैट आर इलेक्ट्रॉन रिच। Okay, the species that are electron rich, they will able to donate, right? They will able to donate. Okay, so अप्रोच की बात करें तो जब हम डोनर एबिलिटी को डिस्कस करेंगे, हम फर्स्ट देखेंगे क्या, हम फर्स्ट देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन, राइट? हाइब्रिडाइजेशन, देन द सेकेंड वन इज okay, first one is hybridization, second one is electronegativity, right? Second one is electronegativity. Okay, and the third one is the nature of electron. The nature of electron, that is localized, okay, localized or delocalized. Okay, the nature of electron, that is localized or delocalized. ठीक है, सो इफ यू लुक फर्स्ट एट द हाइब्रिडाइजेशन। ओके, हाइब्रिडाइजेशन में हम फर्स्ट हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे उसका, आइदर दैट विल बी sp हाइब्रिडाइज्ड और sp2 हाइब्रिडाइज्ड और sp3 हाइब्रिडाइज्ड, वो सब निकालेंगे और उसके बाद हम चेक करेंगे वहाँ पे परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर। ठीक है, वहाँ पे हम चेक करेंगे परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर। And you know what, percentage of s character is inversely proportional to, okay, percentage of s character is inversely proportional to the donor ability, right? Percentage of s character is inversely proportional to the donor ability. That means जिसका s character जितना ज़्यादा और जितना more, the donor ability is उतना less होगा। Why? If the percentage of s character increases, then the donor ability decreases. Okay, so this is the reason that when the percentage of s character increases, आपको पता है ये हमारा न्यूक्लियस होता है। ओके, न्यूक्लियस होता है और उसके बाद लेट्स सपोज देयर इज एन इलेक्ट्रॉन इन द s ऑर्बिटल। ओके, देयर इज एन इलेक्ट्रॉन इन द s ऑर्बिटल। सो s ऑर्बिटल का शेप क्या होता है? स्पेरिकल इन नेचर, राइट? s ऑर्बिटल का शेप क्या होता है? द ऑर्बिटल इज स्पेरिकल इन नेचर. So due to its spherical shape, it will face more or it will feel more attractive force than the from the nucleus. Sorry, it will feel more attractive force from the nucleus. Since the shape of the s orbital is spherical, it will feel more attractive force from the nucleus. So when there will be overall increase in the percentage of s character, the donor ability decreases because the electron is far tightly bound to the nucleus. The electron is very tightly bound to the nucleus, so the donor ability, what, donor ability decreases. When the percentage of s character increases, the donor ability decreases. For example, मैं अगर एक एग्जाम्पल में उसको सॉल्व करूँ तो आपको पता है एक हमारे पास आल्केन होता है, ठीक है, आल्केन CH4। ओके, उसके बाद होता है आल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। और एक होता है क्या, अल्काइन CH ट्रिपल बॉन्ड
CH, ठीक है। तो CH4 का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, हाउ टू, अगर मैं ट्रिक बताऊँ आपको कि कैसे हम हाइब्रिडाइजेशन को फाउंड आउट करते हैं, ठीक है। तो आप एक S लिख देना, एक P लिख देना, देन काउंट द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड आर देयर, 4 सिग्मा बॉन्ड, सो डू 4 minus 1, 4 minus 1 is 3, so the hybridization is sp3, okay. And what is the hybridization over here, how many sigma bond are there, write down sp, and how many sigma bond are there, 1 2, right, 1 2 and 3, 1 is pi bond, okay. And this is sigma bond, so 1 2 3, that means 3 minus 1 2. And what is this one, okay, one sigma bond here, one sigma bond here, these two are the pi bond, so the hybridization is sp, right, sp3 sp2 and sp, okay. So if you look at this, okay, sp3 means how much percentage of s character is there, sp3 means how much percentage of s character is there, 25% s character. If you count from the whole total of 100, there will be 25% of s character and 75% of p character, ठीक है, there will be 25% of s character and 75% p character. Whenever you look at the sp2 hybridization, from the whole count करोगे तो यहाँ पे आएगा 33.3% s character and 66.6% p character. And if you have the sp hybridization, there will be 50% of s character and 50% of p character, ठीक है। तो जिसका एस कैरेक्टर जितना ज़्यादा उसका डोनर एबिलिटी उतना कम, ठीक है। जिसका एस कैरेक्टर जितना ज़्यादा उसका डोनर एबिलिटी क्या होगा, उतना ही कम होगा, ठीक है। ओके, सो लेट मी नो हियर द सेकेंड मोस्ट पॉइंट इज देयर। सेकेंड मोस्ट पॉइंट में हम क्या लिखे थे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये एक टेंडेंसी है टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके। तो जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा उसका डोनर एबिलिटी क्या होगा, कम होगा या ज़्यादा होगा, ठीक है। जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना ज़्यादा उसका डोनर एबिलिटी उतना कम, क्यों, क्योंकि वो तो इलेक्ट्रॉन को बहुत स्ट्रांगली बाइंड करके रखेगा ना। इफ समवन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, दैट मीन्स इट विल बाइंड द इलेक्ट्रॉन मोर टाइटली, राइट, इट विल बाइंड द इलेक्ट्रॉन मोर टाइटली। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी is again inversely proportional to donor ability, okay. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, डोनर एबिलिटी, ओके। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज ऑल्सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डोनर एबिलिटी, ओके। कोई आपको बोले नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन में से कौन सा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ओके, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन में से कौन सा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इफ़ यू हैव नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन बिकॉज ऑफ द साइज, ओके। ऑक्सीजन का साइज छोटा, तो साइज छोटा मीन्स जो इनकमिंग जो अट्रैक्ट होके जो इलेक्ट्रॉन आएगा दैट विल फेल द मोर अट्रैक्टिव फोर्स, सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज मोर देन दैट ऑफ द नाइट्रोजन। इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज मोर, इसका डोनर एबिलिटी क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है। इफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज more, then the donor ability is less. Then third factor था यहाँ पे, थर्ड फैक्टर क्या था, थर्ड फैक्टर था नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। थर्ड फैक्टर क्या था, थर्ड फैक्टर हमारे पास था नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आइदर दैट विल बी लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड। ये सब हम प्रॉब्लम करते वक्त देख लेंगे, ठीक है। व्हाट टू से डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, ओके। लोकलाइज्ड मतलब क्या है, लोकलाइज्ड मतलब होता है एक ही लोकेशन में रह जाना, ठीक है। और डीलोकलाइज्ड मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन मूव करना, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन प्लेस टू। लोकलाइज्ड डीलोकलाइज्ड समझ रहे हो ना, तो ऐसे होता है, ठीक है। जैसे कि मैं बोलूँ अभी आपको, देखो यहाँ पे एमोनिया जो है, एमोनिया का इलेक्ट्रॉन ये क्या है, एक ही जगह है, दैट इज व्हाट, लोकलाइज्ड, ओके, दैट इज व्हाट, लोकलाइज्ड, ठीक है। अगर ये इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड होगा, जैसे कि मैं बेंजीन रिंग में लगा दूँ NH2 ग्रुप, ठीक है, जैसे कि मैं बेंजीन रिंग में NH2 ग्रुप लगा दूँ, इसे क्या बोलेंगे हम, एनिलीन, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे, एनिलीन। तो ये जो एनिलीन का लोन पेयर है ये क्या करता है, रिजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है, प्लस आर इफेक्ट दिखाता है, ठीक है। ये जो एनिलीन का लोन पेयर है ये प्लस आर इफेक्ट दिखाता है, दैट मीन्स नाउ द इलेक्ट्रॉन इज नॉट इन ए सिंगल प्लेस, इट इज डीलोकलाइज्ड, ओके, इट इज डीलोकलाइज्ड, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन लोकलाइज्ड हो रहा है या फिर डीलोकलाइज्ड हो रहा है, और ये यहाँ पे
in this compound the lone pair is in conjugation with the benzene ring, but here it is free. So we have to check either the electron is localized or the electron is delocalized. ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं उसको सम टोटल करके बोलूँ तो आपको 3 फैक्टर में यहाँ पे काम करना है. फर्स्ट फैक्टर इज यू हैव टू चेक द हाइब्रिडाइजेशन. ओके, तो मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम में यही काम देता है. फर्स्ट यू हैव टू चेक द हाइब्रिडाइजेशन. सेकेंड one is you have to check the electronegativity, right? Second one is you have to check the electronegativity. ओके, सो प्लीज़ थोड़ा इग्नोर कर देना. हाँ, यहाँ पे वो डॉग का जो आवाज़ आ रहा है प्लीज़ उसे थोड़ा इग्नोर कर देना. एंड नेक्स्ट वन इज यू हैव टू चेक अबाउट द नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ओके, नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज आइदर यू कैन से लोकलाइज्ड और यू कैन से डिलोकलाइज्ड. ठीक है, तो 3 फैक्टर है. एक है हाइब्रिडाइजेशन, एक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड द लास्ट वन इज नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज आइदर लोकलाइज्ड और यू कैन से डिलोकलाइज्ड. ठीक है, तो यही 3 पॉइंट को लेके अप्रोच क्या था. डोनर एबिलिटी का मतलब आपको पता चल गया ना, जो डोनेट कर सकता है, किसका डोनर एबिलिटी ज़्यादा, किसका डोनर एबिलिटी कम, ये 3 फैक्टर लगा के हम कंपैरिजन कर लेंगे. हाइब्रिडाइजेशन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, देखो मेरे माइंड में ना जब हम SN1 रिएक्शन पढ़ते थे और एक बहुत से टाइम से क्वेश्चन था. ओके, जैसे कि हम लेते हैं टॉर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड. ठीक है, बुक में लिखा रहता है टॉर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड, और उससे हम एक न्यूक्लियोफाइल देते हैं. द न्यूक्लियोफाइल इज OH माइनस. ठीक है, और उसमें सॉल्वेंट लगा देते हैं वाटर. तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखो ये ना एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है जो कि क्लोरीन को भगा के उसके जगह OH बैठ जाता है. ठीक है, तो क्लोरीन सॉरी, तो यहाँ पे देखो ये क्लोरीन को हटा के यहाँ पे क्या होता है, ये क्लोरीन को हटा के यहाँ पे OH बैठ जाता है. ठीक है, तो मेरे माइंड में हमेशा एक क्वेश्चन था कि व्हाई द OH माइनस अटैक ओवर दिस ऑक्सीजन हैज ऑल्सो द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो भी अटैक कर सकता है, बट व्हाई दिस OH माइनस अटैक ओवर हियर. ठीक है, तो बाद में हम देखते हैं कि किसका डोनर एबिलिटी ज़्यादा है, किसका डोनर एबिलिटी ज़्यादा आएगा. OH माइनस का डोनर एबिलिटी ज़्यादा आएगा और वाटर का डोनर एबिलिटी ज़्यादा आएगा. ठीक है, OH माइनस का डोनर एबिलिटी ज़्यादा आएगा या फिर वाटर का डोनर एबिलिटी ज़्यादा आएगा. ये सब बात को स्टडी करने के लिए हमारे पास ये 3 पॉइंट है. वन इज़ हाइब्रिडाइजेशन, वन इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड अनदर वन इज़ नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन. हम उसे देख के डिसाइड कर लेंगे डोनर एबिलिटी क्या है. Okay, so I have some question for you, right? I have already written over here. Okay, sorry. Okay, so these are the questions that I have collected from different materials, different books. Okay, so let's start by solving this using our approach. ठीक है, अप्रोच के साथ इसको सॉल्व करना सीखते हैं. ठीक है, तो लेट्स सॉल्व द फर्स्ट क्वेश्चन. ओके, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या होता है. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या होता है आप बोलो. देखो जब हम हाइब्रिडाइजेशन काउंट करते हैं ना, हाइब्रिडाइजेशन में हम पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करते हैं, लेकिन हम सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर को काउंट करते हैं. ठीक है, सिग्मा बॉन्ड, वी काउंट सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर बट वी नेवर काउंट द पाई बॉन्ड. ओके, ठीक है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, ये लोन पेयर को काउंट करना है. सो दिस इज 1 2 3 एंड 4. 4 मतलब sp, 4 minus 1 3. ओके, सो द हाइब्रिडाइजेशन इज sp3. नाउ हियर यू लुक एट हियर, पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करना है. दिस इज 1 2 3. Okay, here also 1 2 and lone pair 3. So both the carbon atom are sp2 hybridized. Now from here this is one sigma bond, this is sigma bond, this is pi bond, this is pi bond. So here 1 2 sp. Okay, 2 minus 1 1. Here also 1 and lone pair, so it is sp. So the hybridization of CH3 minus is sp3. Now here it is sp2 and here it is sp. तो आपको मैं बोल चुकी हूँ sp3 मतलब कितना परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर, 25% एस करेक्टर. sp2 हाइब्रिडाइजेशन मतलब 33.3% ऑफ एस करेक्टर एंड sp हाइब्रिडाइजेशन मतलब कितना एस करेक्टर, 50% ऑफ एस करेक्टर. ठीक है, 50% ऑफ एस करेक्टर. एंड एस करेक्टर क्या होता है, एस करेक्टर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डोनर एबिलिटी.
ठीक है, एस कैरेक्टर इज इन, फर्स्ट चेक करेंगे हाइब्रिडाइजेशन, उसे आंसर नहीं आया तो हम चलेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे, उसे नहीं आया तो लोकलाइज्ड एंड डेलोकलाइज्ड, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 25% ऑफ एस कैरेक्टर, यहाँ पे आ गया 3% एंड यहाँ पे आ गया 50%। सो मोर द एस कैरेक्टर मीन्स लेस इज द डोनर एबिलिटी, ठीक है, मोर द एस कैरेक्टर मीन्स लेस इज द डोनर एबिलिटी। सो किसका डोनर एबिलिटी ज़्यादा होगा, जिसका एस कैरेक्टर कम है, जिसका एस कैरेक्टर कम इसका डोनर एबिलिटी ज़्यादा, दैट मीन्स हियर इज द पॉइंट। ओके, CH3 माइनस का डोनर एबिलिटी ज़्यादा होगा, उसके बाद इसका और उसके बाद इसका। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व। नेक्स्ट कम टू द सेकंड क्वेश्चन। ओके, सेकंड क्वेश्चन में आप देखो सेकंड क्वेश्चन में हम जब चेक करेंगे, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, हम तो कर चुके हैं sp3, ठीक है, लोन पेयर को भी काउंट करना है, 3 to सिग्मा बॉन्ड है और एक लोन पेयर है, सो 4 - 1 3, दिस इज sp3। नाउ हियर देयर आर 2 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो अगेन 4 - 1 क्या होगा, sp3। तो यहाँ पे देखो हाइब्रिडाइजेशन तो सेम हो गया, यहाँ पे भी sp3, यहाँ पे भी sp3। अब कैसे करेंगे, सेकेंड पॉइंट पे जाएंगे। सेकेंड पॉइंट में क्या बोला था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी is inversely proportional to donor ability, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डोनर एबिलिटी, ये बोला था। तो आप बोलो कार्बन और नाइट्रोजन में से कौन सा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। कार्बन और नाइट्रोजन में से हम जब पीरियड में मूव करते हैं ना, साइज छोटा होता है, और जब ग्रुप में मूव करते हैं साइज बड़ा होता है। तो जब पीरियड में मूव करते हैं साइज छोटा होने के कारण इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, इंक्रीज होता है। सो नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, ठीक है। इफ इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन इट्स डोनर एबिलिटी इज लेस। Okay, if it is more electronegative, if nitrogen is more electronegative than carbon, then its donor ability is less, जो कि होता है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि CH3 माइनस इज मोर देन NH2 माइनस। ओके, द नेक्स्ट कम टू द थर्ड क्वेश्चन। ओके, थर्ड क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे है NH3 और एक NH2 माइनस। ओके, तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन होगा आपका अगेन sp3, एक लोन पेयर, 3 सिग्मा बॉन्ड, 4 - 1 3, सो sp3। नाउ ऑल्सो द व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस वन, हियर ऑल्सो यू टेक NH2 माइनस, मीन्स एक लोन पेयर है ऑलरेडी, ठीक है। तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, sp3, ठीक है, इसका भी हो गया sp3, इसका भी हो गया sp3, बिकॉज ये चारों को काउंट करना है, 1 2 3 एंड 4, 4 - 1 3, सो sp3 एंड sp3, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो नेगेटिव चार्ज है, तो एक सिस्टम क्या चाहता है, हमेशा सिस्टम चाहता है कि दैट वन वांट टू स्टेबिलाइज द नेगेटिव चार्ज। ओके, जहाँ पे चार्ज होता है वो चार्ज स्टेबिलाइजेशन अच्छे से चाहता है। तो ये चार्ज स्टेबिलाइजेशन चाहेगा तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके चार्ज स्टेबिलाइज होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके चार्ज स्टेबिलाइज होगा, इसीलिए ये इसका डोनर एबिलिटी ज़्यादा होगा। ये सही हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द डोनर एबिलिटी। सो इसका डोनर एबिलिटी ज़्यादा आएगा, ठीक है, इसका डोनर एबिलिटी ज़्यादा आएगा, क्योंकि ये दिस वन वांट टू स्टेबिलाइज द चार्ज। बट प्रीवियस केस में क्या था, प्रीवियस केस में दोनों में चार्ज था, ठीक है, प्रीवियस केस में दोनों में चार्ज था, तो वी हैव टू चेक द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसका ज़्यादा उसका डोनर एबिलिटी कम। ओके, तो फोर्थ क्वेश्चन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, उसके बाद और एक क्वेश्चन बचा है उसे कर लेंगे। फोर्थ क्वेश्चन में देखो क्या होता है, ठीक है। तो ये सबका हाइब्रिडाइजेशन है, ये सबका हाइब्रिडाइजेशन है, यहाँ पे सभी में लोन पेयर है, राइट, यहाँ पे सभी में लोन पेयर है। एंड काउंट द बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर, 3 सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर, 3 सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर, तो सभी का हाइब्रिडाइजेशन बन जाएगा sp3 sp3 एंड sp3, ठीक है, सभी का हाइब्रिडाइजेशन सेम है, sp3 sp3 sp3। sp3 हाइब्रिडाइजेशन मतलब इसका बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइजेशन मतलब आई थिंक द बॉन्ड एंगल इज 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए टेट्राहेड्रल शेप में, ठीक है, 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए। लेकिन हो रहा है क्या, इसे हम 60 डिग्री में रख रहे हैं, ठीक है, इसे हम रखते हैं, या इसको 60 डिग्री में रखते हैं, इसको रख देते हैं 90 डिग्री, स्क्वायर मतलब 90 डिग्री, इसका कितना होगा 72 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री 90 डिग्री 72 डिग्री। एक चाहता है उससे रहना है 109 में, ओके, आप उसको ज़बरदस्ती 60 में रख रहे हो, क्या होगा वहाँ पे, एंगल स्ट्रेन, ठीक है, क्या होगा वहाँ पे,
एंगल स्ट्रेन होगा। तो इस यहाँ पे ज़्यादा एंगल स्ट्रेन होगा क्योंकि ये रहना चाहता है 109 डिग्री 28 मिनट में और हम इसे 60 डिग्री में रह रहे हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा एंगल स्ट्रेन होगा एज कम्पेयर टू दिस, बिकॉज यहाँ पे 90 डिग्री है। ठीक है, यहाँ पे कितना है 72 डिग्री है। ओके, तो इफ़ यू लुक एट दिस, तो हम अगर जब डोनर एबिलिटी चेक करते हैं, ठीक है, डोनर एबिलिटी चेक करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे फिर। ओके, तो देखो यहाँ पे या when the donor ability is more, I'm sorry, here the bond angle is not 72 degree, it is 108 degree. Okay, here the bond angle is 108 degree, right, here the bond angle is 108 degree. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, एंगल स्ट्रेंथ सबसे कम होगा, यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा होगा और यहाँ पे 60 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो इधर के तरफ, हाँ ठीक है, और एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, और एक कॉन्सेप्ट है बॉन्ड एंगल। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, आप याद रख लेना, बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। ठीक है, बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। जितना बॉन्ड एंगल जिसका ज़्यादा, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर भी उतना ज़्यादा। ठीक है, बॉन्ड एंगल जितना ज़्यादा, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर भी उतना ज़्यादा। आप देखिए ना, क्योंकि जब हम अल्काइन लेते हैं, अल्काइन में क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, एसपी। एसपी मतलब क्या, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर कितना है। इफ़ यू आर टेकिंग द हाइब्रिडाइजेशन एज एसपी, ओके, एसपी मतलब वहाँ पे 50% एस करेक्टर है, 50% एस करेक्टर मतलब द बॉन्ड एंगल इज मोर 120 डिग्री। इफ़ यू आर टेकिंग अल्किन, अल्किन का कितना है 33.sp2 हाइब्रिडाइजेशन, 33.3% एस करेक्टर है, तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना होता है, बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री। ठीक है, तो जिसका बॉन्ड एंगल जितना ज़्यादा है वहाँ का परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर भी बढ़ता जाता है। ठीक है, बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर। तो ये सब प्लेस में क्या होगा, देखो आप, ठीक है, ये सब प्लेस में क्या होगा, जैसे हम ले हैं NH NH NH। ओके, तो जिसका बॉन्ड एंगल, इफ द बॉन्ड एंगल इधर का साइड कम, हाँ बेंड रूल पढ़े हो ना, बॉन्ड एंगल अगर अंदर का साइड ज़्यादा है तो बाहर का साइड क्या होगा, कम हो जाएगा, क्योंकि उसको रहना है 109 डिग्री 28 मिनट में। तो यहाँ पे 108 डिग्री है, तो आपको माइनस करना है 109 डिग्री 28 मिनट से 108 डिग्री माइनस करना है। यहाँ पे 109 डिग्री 28 मिनट से 90 डिग्री माइनस करना है। यहाँ पे 109 डिग्री 28 मिनट से 60 डिग्री माइनस करना है। तो एक जनरल लॉजिक बन जाता है, यहाँ पे बॉन्ड एंगल कम आएगा, तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल कम आएगा, दैट मीन्स द लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन कैन ईजिली डोनेट। तो डोनर एबिलिटी इस तरफ होगा। ठीक है, डोनर एबिलिटी ऐसे इंक्रीज करता जाएगा क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड एंगल कम हो रहा है। ओके, सो नेक्स्ट वन इज, देखो यहाँ पे अगेन कितना, यहाँ पे 60 डिग्री, ठीक है, यहाँ पे कितना 90 डिग्री, राइट, यहाँ पे कितना है 108 डिग्री, ओके, यहाँ पे कितना 108 डिग्री, एंड आई थिंक हियर दिस इज 120 डिग्री, ओके 120 डिग्री। ठीक है, तो रहना कितने में है, रहना है हमें 109 डिग्री 8 मिनट में। ठीक है, 109 डिग्री 8 मिनट में। तो इधर का साइड अगर बॉन्ड एंगल ज़्यादा हो रहा है तो परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर ज़्यादा है, परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर अगर अंदर का साइड ज़्यादा है तो बाहर का साइड क्या होगा, कम हो जाएगा। परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर अगर अंदर का साइड ज़्यादा है तो बाहर का साइड क्या होगा, कम हो जाएगा। कम हो जाएगा मतलब इससे डोनर एबिलिटी इंक्रीज करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हाइब्रिडाइजेशन से हो जाएगा। जैसे कि आपके पास ये जो लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन ये तो फ्री है। ठीक है, ये जो लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन ये तो फ्री है। ओके, बट यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या है, 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, सो हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। यहाँ पे क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन, sp। ठीक है, sp मतलब कम, sp3 मतलब sp मतलब परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर ज़्यादा, 50% एस करेक्टर, ठीक है, 50% एस करेक्टर एंड 50% पी करेक्टर। यहाँ पे कितना होगा 25% एस करेक्टर। तो जिसका एस करेक्टर ज़्यादा उसका डोनर एबिलिटी कम, तो इसका ज़्यादा होगा, इसका कम हो जाएगा। तो गाइस ये 6 क्वेश्चन था जो हम सॉल्व किए। आई थिंक आपको समझ में नहीं आए, आपको समझ में आया होगा।
एंड अगर समझ में नहीं आएगा तो डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो, विल टेक द डाउट, राइट। एंड आई थिंक आपको समझ में आया होगा। 3 पॉइंट है, हाइब्रिडाइजेशन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये 3 को देख के आपको करना है, ओके। तो देखो ये सब जो क्वेश्चन हम किए ये हम बेसिकली हमारा हाइब्रिडाइजेशन एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर बेस था, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर ये सब क्वेश्चन बेस था। एंड आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा नंबर 4, नंबर 5। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो नहीं आया तो मैं और एक बार आपको समझा दूंगी, ठीक है। देखो अंदर का साइड बॉन्ड एंगल कम मतलब बाहर का साइड बॉन्ड एंगल ज़्यादा, एंड द बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, आपको बस एक चीज़ याद रखना है, बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, और जिसका एस कैरेक्टर ज़्यादा उसका डोनर एबिलिटी कम, ठीक है। तो अगर हम इसे समराइज कर दें, ठीक है, इफ यू समराइज इट देन यू विल गेट हियर, ओके। देखो एक भी लाइन में हो जाता है, जिसका परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर ज़्यादा उस, ठीक है, इसका डोनर एबिलिटी क्या होता है, कम होता है, ओके, उसका डोनर एबिलिटी कम होता है। सिमिलरली जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा उसका भी डोनर एबिलिटी कम ही होता है, ठीक है, इसका भी डोनर एबिलिटी कम होता है, ओके। एंड अनदर वन इज यू कैन राइट डाउन हियर, that is again directly proportional to bond angle, ओके। बॉन्ड एंगल ज़्यादा तो परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर ज़्यादा एंड डोनर एबिलिटी कम, ठीक है। बॉन्ड एंगल ज़्यादा तो परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर ज़्यादा एंड डोनर एबिलिटी कम, okay. So I think you understand the concept and the approach how to solve the questions on donor ability, okay. So let stay connected and stay blessed. We'll meet you soon in the next video, okay. Thank you.